All right. So, boys and girls, today we are going to study the derivation for rotational kinetic energy. This ceiling, this wall fan is not rotating, but if it rotates, अगर ये wall fan rotate होगा, तो इसमें कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी. क्यों? लीनियर तो है नहीं, वो ऐसा सीधी लाइन में तो भाग रहा नहीं कहीं. फैन एक ही जगह रुका है, उसके ब्लेड्स घूम रहे. तो द ब्लेड्स ऑफ द फैन विल हैव रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, नॉट लीनियर काइनेटिक एनर्जी. सो expression for, we are going to derive an expression for rotational kinetic energy. Rotational kinetic energy का derivation. ठीक है. And the body is rotating with constant. Expression for rotational kinetic energy of a body rotating with constant angular velocity. Suppose there is an object and it is rotating with constant angular velocity. What is the difference between circular motion and rotational motion? In rotational motion it rotates around something, and in circular motion, so if a particle is moving along the circumference, it is circular motion. But if a number of particles, this is the hand of a clock or the blade of a fan, if there is an ant, चींटी बैठी है समझो, या तो ये फैन का ब्लेड है या घड़ी का कांटा है, और इस पर कोई चींटी बैठी हुई है, तो वो चींटी गोल घूम रही है, तो चींटी के मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे. इट इज अ सिंगल पार्टिकल. बट if this entire hand of a clock or the blade of a fan is moving, तो इसमें क्या हुआ? There are a number of particles. ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है. जब बहुत सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन, किसी ऑब्जेक्ट के, किसी बॉडी के सभी पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो हम कहते हैं ये पूरी बॉडी जो है ये रोटेशनल मोशन कर रही है. गलत बोला? When a single particle moves along the circumference, we say it is circular motion. But when a number of particles are moving in concentric circles, then we say that the body is performing rotational motion. है ना? तो समझ गए डिफरेंस? और रोटेशनल मोशन 3D में होता है और सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशंस में होता है. तो चलो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. लेट अस सपोज देयर इज अ गुड डे बिस्किट eaten up by a mouse from the sides. एक गुड डे बिस्किट है या कोई भी बिस्किट है, सर्कुलर वाला बिस्किट है, रोटी चपाती जैसा, और उस बिस्किट को किसी ने खा लिया, कहीं से नहीं भी खाया तो भी चलेगा. And we are poking a spoke perpendicular to the plane of the biscuit. The biscuit is horizontal and the axis of rotation is vertical. This is the axis of rotation. ये है axis of rotation. साइकिल का स्पोक रहता ना स्ट्रेट, वो ऐसा है, और बिस्किट हॉरिजॉन्टल है. And somebody has applied a torque to the biscuit, and the biscuit is rotating with constant angular velocity. Constant angular velocity से सेम एंगुलर स्पीड से वो गोल 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 घूम रहा है बिस्किट. साइकिल के स्पोक फंसा हुआ है उसमें, और बिस्किट गोल 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 घूम रहा है, लेकिन सेम स्पीड से, उसमें एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, सेम स्पीड से घूम रहा है. तो the biscuit is made up of a large number of particles. Let us suppose there is a small particle of the biscuit object having mass m1, and it is situated at a distance r1 from the axis of rotation. The biscuit has second particle which has mass m2 and which is situated at a distance r2 from the axis of rotation. In this way we can say there is a particle number 3 which is situated at
distance r3 from the axis of rotation, particle 4 at m4, particle 5 at of mass m5 situated at r5 distance. तो perpendicular distance ऐसा करते 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 let us suppose the last number of particles is mn situated at a distance rn from the axis of rotation. क्योंकि पूरा बिस्किट का ऐसे बना है, पार्टिकल्स पार्टिकल्स पार्टिकल से बना है. पार्टिकल्स काय के है, मैदे के है, आटे के है, जो भी जिसका बिस्किट बना होगा मटेरियल. सो ये है बहुत सारे, और ये सब पार्टिकल्स घूम रहे हैं. और जैसे धक्का दिए तो ये पार्टिकल m1 कैसा घूमता है, ऐसा सीधी लाइन में घूमता विद वेलोसिटी v1 बार. ये इधर घूम रहा है और ये वाला इधर घूम रहा है विद v2 बार. किसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेंगी, जो नजदीक वाला पार्टिकल है या जो दूर वाला है? किसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी? सबकी सेम ही रहेगी. एक दिन पढ़ाया था पास वाले पार्टिकल, ये देखो ये mn है ना, ये mn पार्टिकल को मैं जानबूझ के ना एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास रख देता हूँ. इट्स मास इज mn. अब मुझे ये बताओ इसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेंगी, एरो लंबा बनाओ v1 बार या छोटा बनाओ vn बार, सॉरी vn बार, दिख रहा नहीं होगा ना. इट्स मास इज mn एंड इट्स वेलोसिटी इज vn बार. एरो बहुत छोटा बनाया मैंने, क्यों? क्योंकि जिसकी रेडियस कम रहती है उसकी लीनियर वेलोसिटी कम रहती. याद करो मैंने एक दिन आपको बोला था कि मैंने ऐसे हाथ किया या ऐसे हाथ किया और ये मैं था, पहले अलग था मैं, और मैं ऐसा खड़ा था और यहाँ पर मैंने एक बच्चे को टांग दिया था अपने हाथ पे. और नहीं, वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में था, लेकिन 11th स्टैंडर्ड को याद करो. 3 बच्चे थे. हाँ, वेरी गुड. ये 3 बच्चे थे, 1 2, हाँ मेरे 2 ही बच्चे हैं और एक भांजा है, ये 3 है समझो. तो ये तीनों को मैंने लाइन से टांग दिया अपने हाथ पर और मैं सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा हूँ. 1 सेकंड में 30 डिग्री, 1 सेकंड में 30 डिग्री, 1 सेकंड में 30 डिग्री, 30 हर एक सेकंड में 30 डिग्री घूमते जा रहा हूँ. मतलब मेरी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है. समझते हैं ना? 30 डिग्री ये हाथ, 1 सेकंड टिक 30 डिग्री, टिक 30 डिग्री, टिक 30 डिग्री. हर एक सेकंड में सेम डिग्री से एंगल घूम रहा हूँ. मतलब एंगुलर वेलोसिटी सेम है, क्योंकि हमको मालूम है एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. कितने टाइम में कितना डिग्री घूम रहे, कितना रेडियन घूम रहे, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. तो अब सबसे, और इन तीनों के सिर पे बाल है और इनको घुमा घुमा के इतनी हवा लग रही है इनके सिर पे कि बाल झड़ जा रहे हैं. तो सबसे ज्यादा बाल किसके झड़ेंगे? फर्स्ट वाले के बाल झड़ेंगे. और इनके, जब इन लोगों का झूला रुका दूंगा मैं और जब इनको उतार दूंगा तो बोलूंगा सबसे ज्यादा चक्कर किसको आ रहे बताओ बेटा. तो ये वन वाला बोलेगा सबसे ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि जो दूर रहता ना उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा रहती है. इसकी लीनियर वेलोसिटी कम है, इसकी और कम है. ये देखो ना, ऊपर से एक शक्तिमान है या सुपरमैन है समझो, चादर पहन के उसकी चादर उड़ रही है. एक सुपरमैन है, उसने ऊपर से आके देखा तो उसको क्या दिखेगा मालूम? उसको ऐसा दिखेगा, ये मेरी मुंडी, टकला, सिर, और ये ऐसा हाथ दिखेगा उसको, और यहाँ एक बच्चा दिखेगा, यहाँ एक बच्चा दिखेगा और यहाँ एक बच्चा दिखेगा, है ना? ऐसा वो जूम करके दिख रहा है समझो. और घूमते हुए 1 सेकंड में मैंने 30 डिग्री घुमा समझो. ये ऐसा घुमा रहा हो हाथ अपना, 30 डिग्री घुमा. तो ये वाले बच्चे ने कितना डिस्टेंस कवर किया? इतना सिर्फ. इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया. ये बच्चा नंबर 3 है, ये बच्चा नंबर 2, ये बच्चा नंबर 1. तो बच्चा नंबर 1 ने देखो सबसे ज्यादा लीनियर डिस्टेंस कवर किया. टाइम कितना लगाया मैंने? 1 सेकंड. मैं 1 सेकंड में 1 डिग्री घूमा. मैंने 1 सेकंड में 1 डिग्री अपने हाथ को घुमाया. लेकिन बच्चा नंबर 3 जो है वो सिर्फ इतना सा घुमा 1 सेकंड में, सीधा स्ट्रेट लाइन. बच्चा नंबर 2 1 सेकंड में इतना लंबा डिस्टेंस आया, और बच्चा नंबर 3 1 सेकंड में सबसे ज्यादा लंबा लीनियर डिस्टेंस आया. तो एंगुलर वेलोसिटी सेम है सबके लिए, एक 30 डिग्री पर सेकंड है ना, π/6 रेडियन पर सेकंड. लेकिन लीनियर डिस्टेंस सबके लिए अलग है.
टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंस सबके लिए अलग है, मतलब सबके लिए वेलोसिटी अलग है। तो जब भी हमारी एंगुलर वेलोसिटी भले ही सेम रहे, हमारी लीनियर वेलोसिटी अलग रहेगी अगर रेडियस अलग रहेगी। घड़ी के 3 कांटे होते हैं, आर हैंड का कांटा छोटा क्यों होता है? व्हाई इज द सेकंड आर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्मॉलर देन द मिनट हैंड एंड द सेकंड हैंड? क्योंकि उसको धीरे धीरे घूमना पड़ता है। जिसकी रेडियस कम रहती उसका एंगुलर, उसका जो क्या कहते हैं लीनियर वेलोसिटी कम रहता है, और ज्यादा आर हैंड का है और सेकंड हैंड का सबसे ज्यादा लीनियर। देखो घड़ी में कांटे कौन से छोटे होते कौन से, कभी अपन देखते हैं क्या घड़ी को ध्यान से? सच में जब 12 बजे से 1 बजे पर काटा जाता है तो कितने डिग्रीज घूमता है? 30 डिग्री। श्योर? सही तो है, 30 डिग्री से घूमता है। 12 बजे से 3 बजे पर जाएगा तो 90 डिग्री घूमेगा। चलो अब ये समझ में आ गया। तो डेरिवेशन की तरफ आते हैं ना, बिन फालतू डेरिवेशन लंबा हो जाएगा, टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा अपना, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ गया। तो ये देखो इसकी रेडियस कम है तो लीनियर वेलोसिटी भी कम है, रेडियस ज्यादा तो लीनियर वेलोसिटी ज्यादा, तो सबकी अलग अलग लीनियर वेलोसिटी है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? और आपको हर बार की तरह पता है, मैं किसी भी डेरिवेशन की आत्मा पढ़ाता हूँ, शरीर आपको लगाना है। कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ टोटल मास कैपिटल M rotating with constant angular velocity omega bar, ये omega, and let us suppose that the body, in reality the body is made up of a large number of particles having masses m1, m2, m3 dot 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 mn situated at distances r1, r2, r3, r4 dot 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 rn respectively from the axis of rotation। तो ऐसा सब लिख लेना और फिर लिखना although, अब मैं यहाँ से चालू कर रहा एकदम से, आपको नवनीत डाइजेस्ट से लिखना है आंसर। मैं लिखता हूँ although all the particles have same angular velocities, comma, their linear velocities are different। और फिर हम क्या लिखेंगे? v1 is the velocity of first particle, v2 bar is the velocity of the second particle, v3 bar and dot 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 vn bar is the velocity of the nth number of particle। and mass भी हमने बोल दिए, mass m1 is situated at distance r1। लिख कर दूं कि पूरा डेरिवेशन बना के आप बना लेंगे ना नवनीत डाइजेस्ट में देख के। mass m2 is situated at distance r2 respectively कर देना, mass m3 at r3 and dot dot mn situated at rn, है ना। अब लिखेंगे kinetic energy of first particle of mass m1 is equal to, kinetic energy क्या रहती? हाफ m1 v1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल घूम रहा है तो, फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल ऑफ मास m2 is equal to half m2 v2 स्क्वायर। ऐसे करते करते इधर लाते डेरिवेशन को। काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth particle of mass mn is equal to half mn rn vn square। ऐसा हो गया है ना। तो and the total kinetic energy, rotational kinetic energy of the body, is equal to sum of, देखो हर एक पार्टिकल सीधी लाइन में जा रहा है, लेकिन इफेक्ट क्या हो रहा है? टोटल पूरी बॉडी तो रोटेट हो रही है। और वैसे भी आपको मालूम है रोटेशनल मोशन कैसे बनता? स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। जब बहुत सारी स्ट्रेट लाइन जुड़ जाए तो ही तो रोटेशनल बन जाता है ना, सर्क्यूलर बन जाता है। तो although each single particle is moving along
a straight line, but the resultant total effect is that the body is rotating, the biscuit is rotating. तो हम क्या लिखेंगे फिर? Sum of linear kinetic energy of all particles of the body. और अब हम क्या लिखेंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को ऐसा लिखेंगे के ई रॉट. रॉट यानी रोटेशनल है ना, सड़ने वाली रॉट नहीं है. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू हाफ mn स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल. देखो मैं थोड़ा हिसाब से पीछे सरका के लिख रहा हूँ इसको, काइनेटिक एनर्जी को. अब क्या होगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल कैसी आएगी? सबका ध्यान है? सबका साथ सबका विकास. तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर की जगह क्या मैं r1 ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ? याद करो एक दिन अपन ने पढ़े थे v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा. लीनियर. यहाँ साइड में प्रूव करके दिखाओ कि कैसे आता है वो. याद है सबको? पक्का? ओके. तो अपन ने पुराने वीडियो में एक जगह किए थे. प्लस हाफ m2 v2 की जगह r2 ओमेगा. ओमेगा क्यों सबका सेम है? क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, क्वेश्चन में लिखा रहेगा विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. तो ओमेगा सबका सेम है, रेडियस सबकी सेम, डिस्टेंस सबका सेम नहीं है. तो प्लस एंड सो ऑन करते 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 प्लस हाफ mn rn ओमेगा स्क्वायर. इसलिए पीछे सरकाया था क्योंकि r ओमेगा v एक था, r ओमेगा 2 है, इसलिए इधर सरका दिया था जगह बनाने के लिए. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ, ये प्लस है, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. क्या कॉमन दिखता है हमको? हमको हाफ कॉमन दिखता है और इधर ओमेगा स्क्वायर कॉमन दिखता है. तो हम लिखेंगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू mn rn स्क्वायर. और ये तो डेफिनेशन होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की. द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया. तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम I से बताते हैं और ओमेगा स्क्वायर. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. और बस, है ना. जैसे वो फैन है उधर का, उसके ब्लेड्स क्या हो रहे? क्या सीधी लाइन में जा रहे हो कहीं? ऐसा हो रहा कि वो फैन का ब्लेड गोल गोल घूमते घूमते ऐसा भी जा रहा है. हाँ, अगर सुदर्शन चक्र है समझो, है ना, और दुर्गा देवी के हाथ से सुदर्शन चक्र निकला और सीधी लाइन में जा रहा है गोल गोल घूमते घूमते, और किसी राक्षस का वध कर रहा है, उसका गला काट रहा है, तो उसमें दोनों काइनेटिक एनर्जीज होंगी. घूमते घूमते भी जा रहा है वो और सीधी लाइन में भी जा रहा है. लेकिन वो फैन का ब्लेड तो किसी का गर्दन नहीं काट रहा, वो तो एक ही जगह है. वो तो रिमेम्बर, मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं ज्यादा बोलता हूँ तो है ना, कभी कभी कम ज्यादा निकल जाता है मुझसे. तो वो वाला जो ब्लेड है फैन का, वो कैसा कर रहा है? गोल 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 घूम रहा है और एक ही जगह पे गोल घूम रहा है. तो उसमें ओनली कौन सी एनर्जी है? हाफ I ओमेगा स्क्वायर. और जो सुदर्शन चक्र था उसमें कौन सी थी? हाफ I ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, वो भी थी. क्योंकि वो सीधी लाइन में भी जा रहा है. कितनी स्पीड से जा रहा है? फास्ट में जा रहा हूँ तो ज्यादा वेलोसिटी है, स्लो जा रहा हूँ तो कम वेलोसिटी है, कम काइनेटिक एनर्जी है. तो उसमें सीधा जाने का भी काइनेटिक एनर्जी था और रोटेशनल भी काइनेटिक, उसमें ज्यादा एनर्जी है ना, और इसमें कम काइनेटिक एनर्जी है. तो जो चीज घूमती हुई जा रही है और सीधी भी जा रही है, उससे जल्दी कुछ भी चीज कट जाएगी क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा है. घूमने की भी है और सीधी चलने की भी है. और जो चीज सिर्फ घूम रही है वो जल्दी से नहीं काट पाएंगी क्योंकि उसमें एनर्जी
कम है। स्टीम में ज्यादा एनर्जी होती है या बॉइलिंग वाटर में? एक आदमी के आंख पर गर्म पानी फेंक दिए, बॉइलिंग वाटर, स्वागत करे उसका, वार्म वेलकम, है ना, उसके मुंह पे गर्म पानी फेंक दिए, बॉइलिंग वाटर, और दूसरा आदमी आया और उसके मुंह पे प्रेशर से स्टीम उड़ा दिए, कौन ज्यादा जलेगा? स्टीम वाला, क्योंकि स्टीम में और ज्यादा एनर्जी है। बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस था, उसमें हीट थी, और स्टीम बनी तो ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करके वो गैस बनी लिक्विड से, तो उससे ज्यादा जलेगा। वैसे ही रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों हो तो ज्यादा एनर्जी होती है, इसमें कम एनर्जी है। तो जो मैंने फालतू की बकवास किया उसको भूल जाओ, और जो खास चीज है वो याद रहो, है ना। हाँ, वीडियो बंद कर दो।